Good afternoon, everyone. Greetings from eNiti, Nurses' Efforts to Eliminate TB in India. I am Shima John, moderator for this eNiti clinic today. We are thrilled to have you here for our session on bronchial asthma. Before we dive in, I would like you to give you all a brief overview of what we have planned today in this session. We'll start with the presentation and our presenter by presenter, and we'll follow with question answer sessions. We encourage you to please participate actively. Feel free to ask any questions or your thoughts by writing in the chat box. Your insights and your questions will be invaluable to us. I hope our eNiti chain of sessions will help you grow and become more productive as well as smarter than your present capacity. A quick note on technicalities. Please, I request all of you to keep your microphone mute so that there is no disruptive noises. And secondly, if you experience any technical issues, please let us know through chat box so that we can assist you as promptly. I request, this is the main important point, that I request everyone to join separately using your own email account so that you can avail certificates. Otherwise, it would be very difficult for us to provide you with certificates. For all the new joinees, I would let you know that this is our 21st eNiti session and we conduct this session every Friday, third Friday of every month. So please note this date, every third Friday of every month. And we are here excited to get started. Look forward to a productive and enjoyable session together. Thank you again for being here. Let's begin with the introduction. I could see Bala ma'am, our director ma'am, has joined the session. Thank you, ma'am, for joining. Ma'am, we would be honored if you deliver the introductory words to our participants here. We would appreciate if you could share your thoughts on eNiti. Even otherwise, if you open to any message you feel would be highly impactful. Yeah, thank you, Shima. I welcome everyone on behalf of NITRD. And this is a very, as we all know, that this nurses' efforts to eliminate TB in India. These sessions are going on, have been conducting, and this is the, as told by Shima, this is the 22nd session. And a lot of sessions has been already conducted related to infection control, the personal protective equipments which are used, the administrative controls, the environmental controls, and many other sessions have been conducted earlier. So it is very encouraging, and I want to ask everyone to please join these sessions because they are very important and they are very good learning experiences for all. And today I think that is going to be a case presentation. So please remain attentive, and you can also ask your questions at the end. And I wish you all the best, and please go ahead and start your case presentation. Thank you. Thank you, ma'am. Your presence has greatly enhanced the value of our class. Thank you, ma'am. Thank you for your kind words too. Thank you. Now we start with the introductory session. We have a dynamic team here. He's Mr. Kuldeep Pal Rajput. He's a nursing officer in our institute and he's the presenter here. He's going to present on the topic bronchial asthma. Right to him is Ms. Simran. She's also nursing officer from our institute NITRD and she is a very senior nurse. We have our eco team, Ms. Shifa also here. Hello, ma'am. So, now online we have our expert, Dr. Kanishk Sinha. Dr. Kanishk Sinha, can you hear us? Yes, I can hear you. We are audible. I am audible, sir? Yes, you are audible. Am I audible also? Yes, sir, quite well. We are connected. He's our expert today and he's from NITRD. He's medical officer here and nodal officer for BMW Waste Management. So we welcome you to this session. And great thanks to joining us and being an expert for here. Thank you. Thank you. Let's begin our presentation. गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम केस प्रेजेंटेशन के बारे में जो बात करेंगे वो एक डिजीज ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में केस प्रेजेंटेशन है। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करते हैं।
हमने एक पेशेंट, हमारे पास एडमिशन आया है तो उसका पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं हम। तो पेशेंट का हिस्ट्री, पेशेंट मिस्टर एक्स, मिसेज एक्स हमारे पास में आया है। उसकी उम्र है 38 साल, 38 ईयर, और फीमेल पेशेंट है वो। उसका एड्रेस है बेगमपुर, न्यू दिल्ली, और रिलीजन मुस्लिम है, और पेशेंट मैरिड है। डेट ऑफ एडमिशन है पेशेंट की 9/12/24। पेशेंट NITRD में 9/12/24 को एडमिट हुआ है विद द चीफ कंप्लेंट ऑफ, ये सारी इसकी कंप्लेंट थी, कफ विद एक्सपेक्टेशन, मतलब उसको खांसी आ रहा है, विद बलगम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, चेस्ट टाइटनेस, ये सिम्टम्स उसको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन 1 वीक से ये सारे सिम्टम्स एग्रीवेट हो गए हैं, मतलब सारे सिम्टम्स बढ़ गए हैं। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस, Mr. X was admitted in NITRD hospital through the emergency ward on 9/12/24 with complaint of cough, with expectoration, shortness of breath, chest tightness, increase with since 1 week। मतलब जो पेशेंट हमारे पास में आया है वो 9/12/24 को भर्ती हुआ है। इसके कंप्लेंट है कि इसको खांसी आ रहा है विद बलगम, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और चेस्ट का उसको टाइटनेस लग रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स उसको 1 वीक से बढ़ गए हैं, मतलब उसको 1 वीक से सीवियर हो गए हैं। नो हिस्ट्री ऑफ फीवर एंड हिमोप्टाइसिस। अब हम यहाँ पर जब पेशेंट हमारे पास में कफिंग की हिस्ट्री लेके आ रहा है, चेस्ट टाइटनेस है उसको, विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो हम यहाँ पे 2 हिस्ट्री और देखनी है पेशेंट की हमें, हिस्ट्री ऑफ फीवर और हिस्ट्री ऑफ हिमोप्टाइसिस। अगर फीवर और हिमोप्टाइसिस प्रेजेंट है तो हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि पेशेंट में भी सफर फ्रॉम टीबी। तो यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ फीवर और हिमोप्टाइसिस नहीं है, तो हमारा डाउट टीबी से थोड़ा अलग हो जाता है। फिर डायग्नोज विद द ब्रोंकियल अस्थमा। अब इसमें जो पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ है, ये 5 साल पहले ब्रोंकियल अस्थमा से डायग्नोज हुआ था ऑन ट्रीटमेंट फ्रॉम NITRD में ट्रीटमेंट के दौरान। सर्जिकल हिस्ट्री, ऐसी कोई सिग्निफिकेंट सर्जिकल हिस्ट्री उसके जो हिस्ट्री में देखी नहीं गई है। हिस्ट्री ऑफ पास्ट इलनेस, नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज मेलाइटस, उसको कोई भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, CAD, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CKD, क्रोनिक किडनी डिजीज, थायराइड डिसऑर्डर, ऐसी कोई भी हिस्ट्री पेशेंट में एट टाइम ऑफ हिस्ट्री प्रेजेंट नहीं है। पर्सनल हिस्ट्री, हाइजीन हिस्ट्री, सबसे पहले बात करते हैं हम हाइजीन हिस्ट्री की। तो मिस्टर एक्स डिपेंड ऑन अदर टू डेली एक्टिविटी। जो पेशेंट है हमारे पास मिसेज एक्स, वो अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपने डेली के रूटीन वर्क करने के लिए दूसरे लोगों पर डिपेंड है, जैसे कि उसके भाई, बच्चे या फैमिली मेंबर्स हो गए। स्लीपिंग पैटर्न, जो नींद आने का तरीका है, सी यूजुअली स्लीप फॉर 8 to 9 आवर। वो जो पेशेंट है हमारे पास में जो 8 से 9 घंटे सोता है, बट नाउ स्लीप 4 आवर्स। आजकल वो पेशेंट 4 घंटे के लिए सो पा रहा है। शी इज डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न ड्यू टू द डिज्निया, सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से उसको स्लीपिंग पैटर्न क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है, तो नाइट वेकिंग उसको देखने को मिल रही है। न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात करते हैं हम, तो फॉलो मिक्स्ड डाइटरी पैटर्न। पेशेंट का कोई सिग्निफिकेंट न्यूट्रिशनल पैटर्न नहीं है, वो सब तरह की मिक्स्ड डाइट ले रहा है, नॉट हैविंग एनी एलर्जी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ फूड। कितना देगा गाड़ी? किसी भी तरह के फूड से उसको कोई एलर्जी नहीं है। एलिमिनेशन पैटर्न की बात करते हैं तो डेफिकेशन, यूरिन का एकदम नॉर्मल पैटर्न में है, उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। फैमिली हिस्ट्री, जब हम पेशेंट के फैमिली हिस्ट्री की बात करते हैं तो मिसेज एक्स बिलोंग फ्रॉम द न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली से बिलोंग करती हैं। देयर इज 6 मेंबर, पूरी फैमिली में 6 मेंबर हैं, इंक्लूडिंग 4 चिल्ड्रन। मतलब पेशेंट के हस्बैंड, पेशेंट खुद और उसके 4 बच्चे, टोटल मिला के 6 फैमिली मेंबर्स हैं। ऑल मेंबर्स आर हेल्दी, सभी मेंबर्स स्वस्थ हैं एक्सेप्ट हरसेल्फ। जो हमारा पेशेंट है, उस पेशेंट को, मिसेज एक्स को छोड़कर सारे फैमिली मेंबर्स सारे स्वस्थ हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ अस्थमा नील। उसके जब हम हिस्ट्री ली है तो हिस्ट्री पे देखने को मिला है, हमें पेशेंट ने बताया कि उसके जो ब्लड रिलेशन में किसी को अस्थमा जैसी बीमारी का कोई भी हिस्ट्री हमें पेशेंट ने नहीं दिया है। तो उसके इकोनॉमिक स्टेटस की बात करें हम, तो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से पेशेंट बिलोंग करता है। लिव्स इन अर्बन एरिया, जो कि एक अर्बन एंड शहरी क्षेत्र में रहते हैं। पोल्यूटेड एंड हाईली डेंसिटी पॉपुलेशन एरिया, जो कि पोल्यूटेड एरिया है,
और जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व है, वो बहुत ज्यादा है, लोग कंजेस्टेड तरीके से वहां पे रहते हैं। अब हम पेशेंट का जनरल एग्जामिनेशन करते हैं। तो जनरल एग्जामिनेशन में जब हम वाइटल्स उसके लेंगे, तो वाइटल्स जनरल एग्जामिनेशन में हम जो वाइटल्स लेंगे, तो एक्सला से हमने उसका टेम्परेचर मार्क किया, तो 77.9 फ़ारेनहाइट आ रहा है, जो कि एक नॉर्मल टेम्परेचर है। ब्लड प्रेशर 126/78 mmHg, तो ये भी एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। पल्स रेट थोड़ा उसका बढ़ा हुआ है, 112 बीट पर मिनट आ रहा है। रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ा हुआ है, 30 ब्रीथ पर मिनट आ रहा है। SpO2 रूम एयर पर, पेशेंट जब रूम एयर पे बिना कोई ऑक्सीजन के, बिना कोई ऑक्सीजन सपोर्ट के उसका हम SpO2 चेक करते हैं, तो उसका SpO2 में 88 देखने को मिलता है। शुगर हमने उसको चेक किया, रैंडम ब्लड शुगर, तो 105 mg/dl है, जो कि एक नॉर्मल वैल्यू है। अब हम फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, तो इंस्पेक्शन करते हैं। इंस्पेक्शन बाई थिंग, जब हम आंखों से देख के पेशेंट को क्या कर रहे हैं, हम एग्जामिन कर रहे हैं। तो ट्रेकिया है, जो हमारा ट्रेकिया की लोकेशन है, ट्रेकिया की लोकेशन मिड लाइन होनी चाहिए। ट्रेकियल कोई भी डेविएशन देखने को नहीं मिल रहा है, नो ट्रेकियल डेविएशन, मतलब ट्रेकिया अपना मिड लाइन पे है, कहीं भी राइट या लेफ्ट शिफ्ट पे नहीं है। चेस्ट वाल, हमारा जो चेस्ट वाल होता है नॉर्मल शिफ्ट है। जैसे कि आपने देखा होगा चेस्ट वाल कई जगह पर, चेस्ट वाल का साइज होता है वो आपका एबनॉर्मल हो जाता है। जैसे कि बात करें सीओपीडी में, सीओपीडी में हमारा चेस्ट बैरल चेस्ट देखने को मिलता है, पिजन चेस्ट देखने को मिलता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारा एंट्री पोस्टर डायमीटर और ट्रांसफर डायमीटर डबल होता है हमारे किसके, एंटीरियर पोस्टीरियर के। लेकिन जब सीओपीडी होगा तो कंजेशन की वजह से, लंग्स में प्रॉब्लम की वजह से हमारा एंट्री पोस्टर डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और आपका ट्रांसफर डायमीटर कम हो जाएगा, और एंट्री पोस्टर डायमीटर आपका सेम रहेगा। तो आपका चेस्ट की जो ट्रांसफर शेप है वो शुगर के ऐसा हो जाएगा। तो आप देखोगे चेस्ट को अपीयरेंस करोगे तो ऐसा आगे जैसे कबूतर का क्या है, आपका चेस्ट है। तो यहां पर हमारा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। हम जब एग्जामिनेशन कर रहे हैं इंस्पेक्शन के थ्रू, तो चेस्ट वाल क्या है, नॉर्मल है। चेस्ट वाल पर कोई भी स्कार, कोई इंजरी, कोई भी मार्क ऐसा देखने को एबनॉर्मल नहीं मिला है। सिमेट्रिकल मूविंग विद रेस्पिरेशन, जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो हमारा चेस्ट अप एंड डाउन होता है। सिमेट्रिकल मतलब श्वास के साथ में, जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसके साथ साथ में हमारा चेस्ट बराबर मूवमेंट कर रहा है रेगुलर मैनर में। ऐसा नहीं है कि हम श्वास ले रहे हैं तो चेस्ट, ये एब्डोमेन आपको एब्डोमेन यूज करना पड़ रहा है सांस लेने टाइम पे, ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। जब हम पाल्पेट करते हैं, ट्रेकिया क्या है हमारा, मिड लाइन है, बायलेटरल मूवमेंट कंपेरेबल, दोनों साइड उसका मूवमेंट चेस्ट, बायलेटरल चेस्ट मूवमेंट कंपेरेबल, दोनों साइड का चेस्ट मूवमेंट कंपेरेबल है। ट्रेकियल फ्रेमिटस, जो कि ट्रेकियल साउंड होती है, वो क्या है, नॉर्मल और कंपेरेबल है। ऐसा कोई भी यहाँ पर एबनॉर्मल साउंड देखने को हमें नहीं मिला है। परकशन करते हैं, परकशन करने पर, परकशन का मतलब होता है ऐसे टच करके चेक करना। तो रेजोनेंस बायलैटरली, रेजोनेंस वर्ड का मतलब यहाँ है कि जहां पर जब हमारे लंग्स में एयर फिल होती है या हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयर जाता है, तो जो एयर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसको हम रेजोनेंस साउंड बोलते हैं। तो बायलैटरली हमको देखने को मिल रहा है परकशन करने पर। अस्कल्टेशन करते हैं, जब स्टेप से हम अस्कल्टेशन करते हैं पेशेंट का, तो दोनों साइड एयर एंट्री क्या है, नॉर्मल है। रॉन्चिक प्रेजेंट ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन, जब एक्सपिरेशन पेशेंट कर रहा है तो रॉन्ची साउंड क्या होता है, एक लो पिच साउंड होता है और इसमें गार्गलिंग जैसी साउंड आती है। ये साउंड प्रोड्यूस क्यों होगी, जब पेशेंट को अस्थमा होगा तो अस्थमा में ड्यू टू द सीक्रेशन कलेक्शन, सीक्रेशन का कलेक्शन हो जाएगा कहां पर, हमारे ब्रोंकाइटिस में और एयरवे में। इससे एक साउंड प्रोड्यूस होगी, वो लो पिच होगी, उसकी इंटेंसिटी कैसी होगी, पिचिंग की लो पिच होगी। तो वो हमें देखने को मिलेगी कहां पर, रॉन्की प्रेजेंट ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन। जब हम एक्सपायरेशन करेंगे तो हमें ऐसा साउंड प्रेजेंट होगा जैसे कि कुछ गर्र गर्र की आवाज आ रही है। और ये मैंने BF रखे ना, बोका फेमिटस, जो हम बात करते हैं लैरिंग्स वाला, लैरिंग्स बोका फेमिटस क्या है, नॉर्मल और कंपेरेबल है। अब हम पेशेंट के इन्वेस्टिगेशन पे जाएंगे। जो पेशेंट के बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन हमने किए हैं एडमिशन पे, तो 9 तारीख को पेशेंट भर्ती हुआ था तो इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ था। तो इन्वेस्टिगेशन हमें पेशेंट को डायग्नोज करने में बहुत ही ज्यादा सपोर्टफुल होते हैं। तो इसका हीमोग्लोबिन की बात करें हम, तो 9 को इसका हीमोग्लोबिन था 15.7, जो कि एक नॉर्मल रेंज है। TLC
यहाँ पर पेशेंट का बढ़ा हुआ है टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो कि इंडिकेटर है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन प्रेजेंट होने का। तो टीएलसी 13,900, मतलब पेशेंट का जो नॉर्मल टीएलसी होना चाहिए किसी भी व्यक्ति का वो 4,000 से 11,000, 4 to 11,000 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर टीएलसी कितना है 13,900। तो ये हमें कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है बॉडी में कहीं ना कहीं हमारे इन्फेक्शन प्रेजेंट है। प्लेटलेट्स का काउंट नॉर्मल है, एसजीओटीपीटी ऑन एडिशन नॉर्मल है, यूरिया, क्रेट, पोटेशियम और सोडियम सारे बिल्कुल नॉर्मल है। तो यहाँ पे पेशेंट में कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। फिर हम पेशेंट का एडमिट होने के बाद दोबारा करते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन 5 डेज बाद में, तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल है लेकिन टीएलसी 9,720 देखने को मिलता है, जो कि कम हुआ। अब ये कम होने का रीजन क्या है कि इन्फेक्शन है तो सब साइड हुआ है, इन्फेक्शन को ट्रीट किया गया है। इन्फेक्शन ट्रीट किया गया है तो जब हम पेशेंट का डाटा आगे जाके जब इसका वो करेंगे क्या बोलते हैं ट्रीटमेंट हिस्ट्री में पेशेंट को एंटीबायोटिक दिया गया है, तो एंटीबायोटिक की वजह से हमारे जो काउंट है वो क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो पेशेंट अभी टीएलसी के हिसाब से कहीं भी इंफेक्शन शो नहीं कर रहा है। प्लेटलेट काउंट ठीक है, एसजीओटीपीटी नॉर्मल रेंज में है, यूरिया, क्रेट, पोटेशियम और सोडियम दोनों सारे इलेक्ट्रोलाइट्स नॉर्मल रेंज में देखने को मिल रहे हैं। डीएलसी बात करते हैं, एक होता है टीएलसी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो डब्ल्यूबीसी होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, उनको हम ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। तो उनका टोटल काउंट तो टीएलसी कहलाता है। और डिफरेंस मतलब न्यूट्रोफिल्स, एस्टेनोफिल, बेसोफिल, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट सबको डिफरेंस करके अगर बताया जाए तो उसको बोलते हैं डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। जो कि बात करते हैं न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल्स में 60% है, जो कि 60 to 70% नॉर्मल होता है। तो इसका मतलब यहाँ हमारा क्या है कि ल्यूकोसाइट क्या है, सॉरी न्यूट्रोफिल्स क्या है, एकदम नॉर्मल रेंज में देखने को मिल रहा है हमें। दूसरा हो गया हमारा ल्यूकोसाइट है 30, तो 30 ल्यूकोसाइट होता है 20 से 35, तो ये भी हमारा नॉर्मल रेंज में देखने को मिल रहा है। इसिनोफिल की बात करें तो इसिनोफिल होता है 1 to 3%, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इसिनोफिल काउंट्स क्या है, बढ़े हुए हैं। और जो कि अस्थमा में हम देख रहे हैं, आप जानते हो कि अस्थमा में जैसे हम बात करते हैं अस्थमा में, तो इसिनोफिल के काउंट्स हमेशा बढ़े हुए मिलते हैं, क्योंकि जहां एलर्जिक रिएक्शन होगी और इसिनोफिलिक अस्थमा होगा वहां पे इसिनोफिल का काउंट बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसिनोफिल काउंट हमारे लगभग डबल देखने को मिल रहा है। इसका कहीं ना कहीं इंडिकेशन है पेशेंट अस्थमेटिक, और जो कि हमने प्रीवियस डायग्नोस किया कि पेशेंट को क्या है, ऑलरेडी अस्थमा है, तो इसिनोफिल काउंट यहाँ पे बढ़े हुए हैं। तो हम उसको डायग्नोसिस को क्या कर रहे हैं, कोरिलेट कर रहे हैं हमें प्रीवियस डाटा के साथ में। चेस्ट एक्सरे नॉर्मल लिमिट में है। अब देखिए जब कोई पेशेंट हमें हिस्ट्री बोलता है कि मेरा सांस फूल रहा है, अस्थमा है, बीजिंग की हिस्ट्री करता है, तो हम उसका एक्सरे पीएनएस करते हैं, पेरानेजल साइनस का एक्सरे करते हैं। रीजन क्या होता है कि पीएनएस एक्सरे करने के लिए हम एक चीज डायग्नोस करते हैं, लेफ्ट साइडेड इसको डीएनएस आया, जैसे कि इसको डीएनएस तो नहीं है, नजल कोई पॉलिप तो नहीं है, या फिर आपका जो सेप्टम है वो किधर डेविएट है या नॉर्मल शेप में, उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक्सरे पीएनएस करेंगे। अदर डायग्नोस्टिक की बात करें तो सीरम आईजी करेंगे। सीरम आईजी का नॉर्मल लेवल होता है 0 to 200, 0 से 200 यूनिट पर लीटर। लेकिन हमने यहां देखा इन्वेस्टिगेशन में तो इसका सीरम आईजी लेवल कितना देखने को मिल रहा है हमें, 600। इसका मतलब एलर्जिक अस्थमा में सीरम आईजी हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे पेशेंट का क्या है कि देखो अब हम कहां से कोरिलेट करेंगे, पिछली हिस्ट्री देखी तो पेशेंट में कि फैमिली में किसी को हिस्ट्री नहीं है किसकी, अस्थमा की, मतलब वहां पर जेनेटिक वाला जो प्रीडिस्पोजिशन होना चाहिए वो यहां से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किसका यहाँ पे सीरम आईजी लेवल बढ़ा रहा है। मतलब ये कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि ब्रोंकल अस्थमा जो पेशेंट को है वो किस टाइप का है, एलर्जिक टाइप का है। ठीक है, क्या Next. अब पेशेंट के और हमने जो भेजते हैं क्या, कल्चर भेजा, ब्लड कल्चर पेशेंट का हमने भेजा हुआ है 10, 12, 24 को। तो ब्लड में कोई भी बैक्टीरियल ग्रोथ या कोई भी ऐसा वायरस का ग्रोथ या कोई भी हमें जो बैक्टीरिया वायरस है वो कुछ देखने को नहीं मिला है, बिल्कुल स्टरलाइज कल्चर है। स्पुटम एआरबी किया है टू रूल आउट द टीबी, तो स्पुटम हमारा स्पुटम एआरबी क्या है, नेगेटिव है। स्पुटम पायोसियस किया है, स्पुटम कल्चर भी क्या है, नेगेटिव है।
अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा पीएफटी। पीएफटी क्या है हमारा? पीएफटी पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। जब हम बात करते हैं अस्थमा की, तो किसी भी पेशेंट को अस्थमा डायग्नोस करने के लिए ब्रीजिंग है, आपको राइनाइटिस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, ये सारे सिम्टम्स किसी भी पेशेंट के लिए या पेशेंट एक्स के लिए, किसी भी पेशेंट के लिए ये हेल्पफुल या कंफर्मेटरी नहीं हो सकते। ये कंडीशन एसोसिएट हो सकती है किसी और अदर कंडीशन के साथ में। तो हम कंफर्मेटरी डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं? पेशेंट का पीएफटी करते हैं, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अब एक पेशेंट है तो इसमें 3 रेशियो है, एफबीसी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी। अब फोर्स वाइटल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि एक नॉर्मल इंसान जैसे कि मैं हेल्दी इंसान हूं, तो मैं हेल्दी इंसान 1 मिनट में या एक श्वास में कितनी फोर्सफुल, जैसे कि मैंने अभी एक्सप्रेशन किया, ये नॉर्मल एक्सप्रेशन हो गया मेरा, लेकिन फोर्सफुली मैं कितना एक्सपायरेट कर सकता हूं मैक्सिमम, उसके हम परसेंटेज को क्या बोल देंगे? एफबीसी, फोर्स वाइटल कैपेसिटी, जो कि किसी भी पेशेंट की किसी भी नॉर्मल इंसान कितनी होती है? 3.5 टू 5 लीटर, 3.5 टू 5 लीटर। और इसके बाद होता है एफईबी, फोर्स एक्सपेलेटर वॉल्यूम, एफईबी 1 होता है ये, एफईबी 1। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, तो एफईबी 1, जैसे कि एफईबी 1। अब फोर्स वाइटल कैपेसिटी जो हमारी होती है, जो हम कितना फोर्सफुली एक्सपेलेट कर सकते हैं, उसका 1% में हम कितना कर पाएंगे, उसको बोलते हैं एफईबी 1। तो नॉर्मल इंसान में फोर्स वाइटल कैपेसिटी का फोर्स एक्सपेरेटरी वॉल्यूम होता है वो 80% होता है फर्स्ट सेकंड में। जैसे मान लो मैं एक पूरी श्वास में 5 लीटर ऑक्सीजन छोड़ पा रहा हूं, तो एफईबी 1 की बात करेंगे तो एफईबी 1 मतलब फर्स्ट सेकंड में, तो मैं पहली सेकंड में उसका 80% एक्सपेरेट कर दूंगा, मतलब 4 लीटर, 5 लीटर का 80%, 4 लीटर एक्सपेरेट हम कर देंगे। तो अब देखिए हमने यहां देखा एफबीसी नॉर्मल कितना होता है पेशेंट का? 100 टू 120% होता है, 100 टू 120% होता है। लेकिन एफबीसी में यहाँ तो देखने को मिल रहा है स्लाइड में, हमने प्रेडिक्ट किया है इसका 1.37 लीटर होना चाहिए, इसका आया कितना है? 1.07। इसका मतलब ये इसकी फोर्स वाइटल कैपेसिटी क्या हुई है? कम हुई है। फोर्स वाइटल कैपेसिटी कितनी आई है इसकी? 51%, जबकि नॉर्मल इंसान की कितनी होनी चाहिए? 80 से 120% होनी चाहिए, तो ये गिरी हुई है इसकी, मतलब ये इसका क्या है? डिक्रीज है। दूसरा फोर्स एक्सपायरेशन वॉल्यूम 1 सेकेंड, एफईबी 1 है ये, एफईबी 1। अब इस वॉल्यूम का 80% एक्सपिरेट होना चाहिए कितने सेकंड में? फर्स्ट सेकंड में जब एक्सप्रेशन कर रहे हैं तब। लेकिन हमने इसका प्रेडिक्ट किया है कितना? 1.03 लीटर। लेकिन हम जब डाटा को ऑब्जर्व करते हैं या इसका पीएफटी किया है तो कितना डिलीवर कर पाया है? 0.44, मतलब कितना परसेंट कर पाया है ये? 48%, जबकि होना कितना चाहिए था? 80%। तो ये भी इसका क्या हुआ है? कम हुआ है। और जब देखिए हम बात करते हैं अस्थमा की, अगर 80% तक आपका एफबीसी और एफईबी है तो आदमी नॉर्मल है। 60 से 80 की बात 60 से 80 है तो माइल्ड है, 50 से 60 है तो मॉडरेट है, और अगर लेस देन 50% है एफबीसी और एफईबी तो पेशेंट सीवियर अस्थमा से ग्रसित है। मतलब हम अस्थमा को कैटेगराइज अगर कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू पीएफटी बेसिस पर, तो हम इस प्रकार कर पाएंगे। पीएफटी अगर 80% पर है, एफबीसी 80% है और एफईबी भी 80% से ज्यादा है, पेशेंट क्या है? आदमी नॉर्मल है। 60 से 80 है तो इसको माइल्ड अस्थमा है, और 50 से 60 है तो मॉडरेट है, और लेस देन 50% है मतलब कौन से टाइप का अस्थमा है? सीवियर अस्थमा है। तो ये हमारा अस्थमा का कंफर्मेटरी डायग्नोसिस होगा। अब देखिए यहां पर कुछ एक कंडीशन आती है कि हम सीओपीडी और अस्थमा को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि सीओपीडी और अस्थमा में सिम्टम्स भी सेम से आएंगे। उसमें भी हम आपका ब्रीदिंग एफिशिएंसी कम होगा, और आपका जो पीएफटी होगा, पीएफटी भी क्या होगा? आपका डिस्टर्ब होगा। तो अब ब्रोंकल अस्थमा और यहाँ पर सीओपीडी को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, ये मेन मुद्दा आता है यहाँ पे। तो हम देखिए एक बात करते हैं, जैसे किसी पेशेंट का, इस पेशेंट का हमने क्या किया? पीएफटी करने पर उसकी विदाउट ब्रोंकोडाइलेटर हमने पीएफटी किया है, तो उसका वैल्यू ये आया है।
और उसके बाद हमको क्या देंगे, पेशेंट को ब्रोंकोडायलेटर देंगे। ऐसी ड्रग्स जो ब्रोंको क्या कर देगी, डायलेट कर देगी, चौड़ा कर देगी और ईज टू ब्रीथ करेगी या हमारे एयर एंट्री को प्रमोट करेगी। तो अब ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में, ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में अगर हमारा FEV1, कौन सा FEV1, जो FVC का क्या है, फर्स्ट सेकंड का वॉल्यूम है, FEV1 कितना परसेंट होता है, नॉर्मल 80% होता है। तो अगर ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में जो वैल्यू आपकी आई हुई है, जैसे कि हमारा आया है 48%, इसको हमने ब्रोंकोडायलेटर दिया और उसके बाद FEV1 इसका अगर इसका FEV1 आया है 28%, जो कि ब्रोंकोडायलेटर हमने दिया, इसको ब्रोंकोडायलेटर देने के बाद में अगर FEV1 हमारा 12% से ऊपर बढ़ जाता है तो इसको हम बोल सकते हैं पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अस्थमा। जबकि COPD में कैसा होगा, COPD में आपका और कई कई सारे रीजन होंगे, जैसे अस्थमा की कोई एज ग्रुप नहीं होगा, अस्थमा कभी भी आप डायग्नोस कर सकते हो या कभी होगा, जैसे कि बात करते हैं मैक्सिमम अस्थमा चिल्ड्रन में होता है और COPD मैक्सिमम देखने को मिलता है हमें आफ्टर 40 ईयर। तो एक के साथ हम कोरिलेट कर सकते हैं। दूसरा FEV1 अगर 12% के बाद बढ़ रहा है, इसका मतलब पेशेंट अस्थमा से क्या है, डायग्नोस्ड है। और अगर ये 12% से कम बढ़ा आफ्टर ब्रोंकोडायलेटर तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट सफरिंग फ्रॉम COPD। नेक्स्ट। अब देखिए हम डिजीज पोर्शन के बारे में बात करते हैं। इसके जो ब्रोंकल अस्थमा है, तो अस्थमा है क्या, इसके कॉज क्या है, टाइप्स क्या है। तो डेफिनेशन की बात करते हैं अस्थमा की, तो अस्थमा इज ए क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रेस्पिरेटरी डिजीज। ये क्या है, क्रॉनिक डिजीज है। कैसी डिजीज है, क्रॉनिक, लॉन्ग टर्म चलने वाली रेस्पिरेटरी डिजीज है, कैरेक्टराइज बाई, जो कि किस तरह कैरेक्टराइज की जाती है, बाई रिवर्सिबल एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। यहाँ जो एयर फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, एयरवे में जो ऑब्स्ट्रक्शन होगा हमारा, वो कैसा होगा, रिवर्सिबल होगा, मतलब उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि परमानेंट ऑब्स्ट्रक्शन उसको हम ट्रीट नहीं कर पाएंगे, ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, रिवर्सिबल है। दूसरा एयरवे का क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एयरवे का इन्फ्लामेशन। अब देखिए एयरवे में जब इन्फ्लामेशन होता है, इन्फ्लामेशन में हमको पेन देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलती है। तो हमारा यहाँ पे देखो एक क्या सिम्टम आएगा, स्वेलिंग, हमारा एयरवे में पूरे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा। दूसरा हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे, जैसे ही इन्फ्लामेशन होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से हमारा एयरवे की जो स्ट्रक्चर है वो क्या करेंगे, ओवर रिएक्ट करेंगे। क्या करेंगी, ओवर रिएक्ट करेंगी, उसको बोलते हैं हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एयरवे। ठीक है, तो ये हमारा इसका डेफिनेशन हो गया। एलर्जिक अस्थमा, नॉन एलर्जिक अस्थमा, ये अस्थमा के टाइप में आते हैं। इंसिडेंस ऑफ अस्थमा, अस्थमा के इंसिडेंस की बात करें हम, तो मैक्सिमम 77% ऑफ अस्थमा बिगिन इन चिल्ड्रन लेस देन 5 ईयर। 77% केस ऑफ अस्थमा कब स्टार्ट हो जाता है, हमारे 5 साल की एज के पहले स्टार्ट हो जाता है। और 5 साल को और आगे फर्दर डिवाइड करें हम, तो 1 ईयर तक 21% केसेस के देखने को मिलते हैं, इंसिडेंस की बात करें। और 2 to 5 ईयर के केस में बचे हुए आपके 52% केस देखने को मिलेंगे। कहां पर, चाइल्डहुड में। अब मैक्सिमम बात करें तो अस्थमा होता कब है, मैक्सिमम केस कहां देखने को मिलेंगे, आपको चिल्ड्रंस में ही देखने को मिलेंगे, 5 साल तक की एज में। लेकिन हो सकता है कि आपके डायग्नोज ना हो उस टाइम, ऐसे कोई सिम्टम्स ना आए, तो सिम्टम्स कभी भी एग्रीवेट हो सकते हैं थ्रू आउट लाइफ। अब बात करते हैं ईटियोलॉजी की, इसके कारण क्या हो सकते हैं, अस्थमा के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो बात करते हैं हम जेनेटिक, जेनेटिक कॉज क्या हो सकता है अस्थमा का। तो एक हमारा क्रोमोसोम होता है 5q, 5q क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम 5q के जीन्स पर जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं, ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स हैं ल्यूकोट्राइन्स, क्योंकि हमारा क्या है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर है, तो उसके रिसेप्टिव जीन पाए जाते हैं कौन से क्रोमोसोम पे, 5q क्रोमोसोम पे। तो ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसलिए ये क्रोमोसोम की डेफिशिएंसी है कि क्रोमोसोम की वजह से कौन सा बीमारी हो सकता है, अस्थमा हमको हो सकता है। हम बात करें एलर्जन की, तो एलर्जन में कई सारे, जैसे कि आपका पोलन्स हो गया, आपका माइट्स हो गया, आपका हाउस होल्ड डस्ट हो गई, ये सब क्या अस्थमा कॉज कर सकते हैं। ड्रग्स की बात करें तो ड्रग्स भी क्या अस्थमा कर सकती हैं। तो देखो ड्रग्स की बात करें तो एक सबसे पहली बात, ऐसी कौन सी ड्रग है जो मोस्ट कॉमन अस्थमा करती है, तो उसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन क्या करती है, हमारा कॉक्स पाथवे होता है उसको क्या करती है, ब्लॉक करती है। कॉक्स पाथवे को जैसे ब्लॉक करेगी तो कॉक्स पाथवे के ब्लॉक होने की वजह से अदर पाथवे हमारे क्या हो जाएंगे, स्ट्रांगली एक्शन में आ जाएंगे और किसका रिलीजन करेंगे, किसका सीक्रेशन करेंगे, सीक्रेशन करेंगे वो हमारा है
किसका? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है, ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन्स का। तो जैसे ही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या होंगे आपके? एक्टिव होंगे। जैसे ही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर क्या होंगे आपके? एक्टिव होंगे, तो इन्फ्लामेशन कॉज करेंगे, स्वेलिंग होगा, तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन का कैलिबर क्या हो जाएगा आपका? ब्रोंकस का सकड़ा हो जाएगा। तो आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी? अस्थमा देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो स्ट्रेस है, स्ट्रेस में अस्थमा हमारा हो सकता है। दूसरा है हमारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ड्रग्स में और कौन सी ड्रग्स होती है जो कि अस्थमा से रिलेटेड होती है? तो ड्रग्स में हो गया एक आपका NSAIDs, नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। जैसे कि बात करें ब्रूफेन, आइबुप्रोफेन होती है हमारी, NSAID क्या कर सकती है? अस्थमा कर सकती है। वो कैसे अस्थमा करेगी? NSAID क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन के लेवल को क्या करती है? डिक्रीज करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन एक क्या है? हमारी बॉडी में पाया जाने वाला हार्मोन है जो कि किसका काम करता है? वेसोडायलेशन का काम करता है। किसका काम करता है? वेसोडायलेशन का काम करता है। तो हमारी ब्रोंकाई क्या है? एक ब्लड वेसल, एक वेसल्स है, तो वेसोडायलेशन करेगा। तो अगर NSAID देंगे हम तो प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कम होगा तो उससे क्या होगा कि हम हो सकता है कि हमारे ब्रोंकस का भी कंस्ट्रक्शन हो और अस्थमा कॉज कर दे। और होता है बीटा ब्लॉकर। कौन सा ब्लॉकर? बीटा ब्लॉकर। अब हमारे बॉडी में दो तरह के बीटा रिसेप्टर पाए जाते हैं, बीटा 1 रिसेप्टर और बीटा 2 रिसेप्टर। बीटा 1 रिसेप्टर की बात करें तो बीटा 1 रिसेप्टर काम करता है हमारे हार्ट पे और बीटा 2 काम करता है लंग्स पे। तो बीटा ब्लॉकर बात करें, अब जब हमने ड्रग दी बीटा ब्लॉकर, इसमें लास्ट में सफिक्स लगा होता है कौन सा? लॉल। कौन सा सफिक्स लगा होता है? लास्ट में लॉल लगा होता है। जैसे मेटाप्रोलोल बात करें हम, एटेनोलोल हो गया, बिस्प्रोलोल हो गया। जब ये ड्रग्स हम दे रहे हैं तो क्या करेगी? बीटा 2 रिसेप्टर को क्या कर देगी? ब्लॉक कर देगी। और बीटा 2 रिसेप्टर का काम क्या होता है हमारा? बीटा 2 रिसेप्टर का काम होता है हमारी बॉडी में ब्रोंको डायलेशन करना। लेकिन जब बीटा 2 आपने ब्लॉक कर दिया, ड्रग दिया है आपने, बीटा 2 रिसेप्टर क्या हो गया आपका? ब्लॉक हो गया। तो उससे आपको ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा। और अस्थमा में क्या होता है? ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। तो बीटा 2 ड्रग्स भी अस्थमा, बीटा 2 ब्लॉकर ड्रग्स भी अस्थमा कर सकती है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं हम अस्थमा के और बारे में। एक हो गया एक्सट्रिंसिक अस्थमा, एक हो गया इंट्रिंसिक अस्थमा, एक हो गया इंटरमिटेंट और परसिस्टेंट की बात करते हैं। ऊपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, सॉरी, कॉज में एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, उसमें हमारा राइनाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस हो गया, ये सब अस्थमा हमको कर सकते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया। टाइप्स ऑफ अस्थमा। एक्सट्रिंसिक अस्थमा में क्या होगा? ये अस्थमा ऐसा होता है इसमें जिसको मीडिएट करती है IgE एंटीबॉडी। मतलब कोई भी जो कोज होगा हमारा वो बाहर का होगा। एलर्जी हो गया आपका, जैसे कि पोलन्स हो गया, डस्ट हो गया, माइट्स हो गया, कोई भी फैक्टर हो गया, तो कोई भी फैक्टर होगा जो हमारा कहां से होगा? बाहर से होगा। इसमें क्या होगा? फैक्टर बाहर से होगा। दूसरा IgE एंटीबॉडी जो कि इम्यूनोग्लोबुलिन ई होती है, वो कहां बढ़ती है? हमारी एलर्जी रिएक्शन में बढ़ती है, वो उसको क्या करेगी? मीडिएट करेगी, यहाँ पे बड़ी हुई देखने को मिलेगी। दूसरी बात कि इसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं होगी। अदर एंड पे आता है हमारा इंट्रेस्ट का अस्थमा जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट है। वहां पर क्या होगा? हमारा कहीं ना कहीं बॉडी का इंटरनल फैक्टर इसके लिए जिम्मेदार होगा। सही बात करें हमने, हमारा इम्यून मेडिटेड हो गया, किसी को फैमिली हिस्ट्री है किसकी? अस्थमा की ब्लड रिलेशन में, तो वो किस में आ जाएगा? हमारे इंस्ट्रक्टर अस्थमा में आ जाएगा। एक होता है इंटरमिटेंट अस्थमा, ऐसा अस्थमा जो कि इंटरवल से है, इंटरमिटेंट अस्थमा। अब इंटरमिटेंट अस्थमा को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? ऐसा अस्थमा का कौन सा इंटरमिटेंट है, परसिस्टेंट है, इसको दोनों को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो अस्थमा की बात करते हैं हम, अगर किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं कितने बार? वीक में 2 बार से कम। वीक में 2 बार से कम क्या आ रहे हैं? सिम्टम्स आ रहे हैं वीक में 2 बार से कम। सावा यूज कर रहा है शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट, जिसकी हम बात करते हैं, सावा की बात करते हैं, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट मतलब साल्बुटामोल, जो कि शॉर्ट एक्टिंग है, बीटा रिसेप्टर को क्या करती है? एनहेंस करती है, ब्रोंकोडायलेशन करती है। तो सावा यूज कर रहा है कितना? वीक में 2 बार से कम। नाइट अवेकिंग देखने को नहीं मिल रही है ड्यू टू द सिम्टम्स, और कोई भी आपका एक्टिविटी लिमिटेशन नहीं है। ये अगर सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं विद PFT मोर देन FEV1 80%, ये अगर क्राइटेरिया है तो हम बोल सकते हैं
कि कौन सी कैटेगरी अस्थमा की, इंटरमिटेंट अस्थमा। सेकंड आता है हमारा परसिस्टेंट अस्थमा। परसिस्टेंट अस्थमा के 3 टाइप होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड परसिस्टेंट अस्थमा, मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा और सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। तो माइल्ड की बात करें तो सिम्टम्स कितने आएंगे, वीक में 2 बार, नाइट अवेकिंग देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, आपका एफईबी कितना होगा, 80% होगा, ये माइल्ड हो गया। अब बात करते हैं मॉडरेट की। तो मॉडरेट में बात करते हैं, हमारा सिम्टम्स आएगा वीक में मोर देन 2 टाइम, सिम्टम्स वीक में मोर देन 2 टाइम। नाइट अवेकिंग देखने मिलेगी मंथ में कम से कम 4 बार, मंथ में कम से कम 4 बार। एफईबी रेशियो आएगा आपका 60 से 80। तो ये हो गया हमारा मॉडरेट परसिस्टेंट अस्थमा। तीसरा आता है हमारा सीवियर परसिस्टेंट अस्थमा। सिम्टम्स आपको थ्रू आउट डे रहेंगे, आप ड्यू टू द सिम्टम्स ऑल नाइट जागोगे। तीसरी बात कि आपकी एक्टिविटी लिमिटेशन क्या हो जाएगी, बहुत ही एक्टिविटी लिमिटेशन, टोटली आप डिपेंड हो जाओ दूसरे के ऊपर काम करने के लिए, आप कोई एक्टिविटी नहीं कर पाओगे। और आपका FEV1 रेशियो जो होता है FEV1 वो हो जाएगा आपका 50% से कम। अगर इस तरह का क्राइटेरिया है तो पेशेंट कौन से क्राइटेरिया में आएगा, हमारा परसिस्टेंट सीवियर अस्थमा। ये अस्थमा के टाइप खत्म हो जाते हैं। अब बात करें अदर टेस्ट की। अदर टेस्ट हम कौन कौन से और कर सकते हैं अस्थमा के बारे में, अदर टेस्ट कौन कौन से कर सकते हैं यहाँ पे। एक हो गया मिथाकोलाइन चैलेंज टेस्ट, एक हो गया फिनो, एक पीक फ्लोमीटर। मिथाकोलाइन चैलेंज टेस्ट क्या होता है, देखिए अस्थमा क्या है, अस्थमा इज एपिसोडिक, अस्थमा इज द एपिसोडिक। मान लो मुझे अभी अस्थमा है और मुझे एपिसोड आया तो मेरा ब्रोंको कंस्ट्रक्शन होगा। अभी मेरा अगर आप पीएफटी करोगे तो हो सकता है कि पीएफटी आपको डिरेंज मिले, या पीएफटी में आपको क्लासिकल देखने को मिले कि यहाँ पर FEV1 रेशियो, FEV1 B1 FBC FEV1 रेशियो में क्या है, आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। लेकिन किसी पेशेंट को ऐसे सिम्टम्स आते हैं बीच बीच में, और बीच में बाद में ठीक हो जाता है, फिर सिम्टम आने के बाद में ठीक हो जाता है। तो उसका मतलब ये है कि अस्थमा उसको है लेकिन परसिस्टेंट नहीं है, तो उसको और दूसरे ऐसे तरीके से हम डायग्नोस कर सकते हैं। अब मिथाकोलाइन क्या होता है, मिथाकोलाइन है हमारा ब्रोंको कंस्ट्रक्शन एजेंट होता है। मिथाकोलाइन इज द ब्रोंको कंस्ट्रक्शन एजेंट, ऐसा एजेंट है जिसको हम क्या करेंगे, नैप देंगे इसकी, जिसकी मिथाकोलाइन की जैसे नैप दी, नैप देने के बाद में क्या 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 प्रोड्यूस करेगा, ये ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हमारी ब्रोंका को क्या कर देगा, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगा। इसका मतलब एयरवे में क्या होगा, हमारे कहीं ना कहीं ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलेगा ड्यू टू द दिस ड्रग। तो उस टाइम देने के बाद में हम क्या करेंगे, उसका पीएफटी करेंगे। अब पीएफटी में हमको ऑब्जर्व ये करना है कि जैसे आपने मेरी बिना मिथाकोलाइन के पीएफटी की नॉर्मल आ रही है, मिथाकोलाइन देने के बाद में पीएफटी की, पीएफटी करने के बाद आपका FEV1 फोर्थ फुल एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 सेकंड में जो होता है वो अगर 20% से ज्यादा कम हो गया, इसका मतलब आप अस्थमैटिक हो। लेकिन ये टेस्ट अभी नॉर्मली, ये टेस्ट क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है, इसके कई कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं। जैसे एक बात करें, किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है, किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन, इसकी बात करें मोर देन 200 mmHg क्या है, सिस्टोलिक बीपी है, और किसी को सीवियर अस्थमा ऑलरेडी डायग्नोस है, तो वहां पे टेस्ट क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन होता है, और ये टेस्ट रूटीन में यूज भी नहीं करते। दूसरा होता है फिनो, फ्रैक्शनल एक्सपायरेटरी नाइट्रस ऑक्साइड, फ्रैक्शनल एक्सपायरेटरी नाइट्रस ऑक्साइड फिनो। ये टेस्ट हम करते हैं यूजुअली, तो इस टेस्ट को हम स्टेरॉइड्स की इफेक्टिवनेस जानने के लिए करते हैं। जब हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे रहे हैं या फिर हम कोई भी स्टेरॉइड दे रहे हैं तो इफेक्टिवनेस जानने के लिए करते हैं। लेकिन कभी कभी ये टेस्ट किया जब ये टेस्ट किया जाता है तो हमको क्या देखना होता है, जब हम फूंक मारेंगे तो हम क्या करेंगे, एक्सपिरेशन करेंगे, तो उसमें नाइट्रस ऑक्साइड के जो पार्ट होते हैं या नाइट्रस ऑक्साइड का जो अमाउंट है वो कितना है। तो अगर 20 से 35 तक है किसमें, एडल्ट में, 15 से 25 तक है किसमें, चिल्ड्रन में, 15 से 25 चिल्ड्रन में और 20 से 35 एडल्ट में। अगर पार्ट पर बिलियन, पीपीबी बोलते हैं उसको, पार्ट पर बिलियन में इतने पार्ट किसके, नाइट्रस ऑक्साइड के, अगर इतना देखने को हमको मिल रहा है तो इसका मतलब वो नॉर्मल है। और इफ मोर देन 50 इन एडल्ट, इफ मोर देन 35 इन चिल्ड्रन, अगर इतना नाइट्रस ऑक्साइड देखने को मिल रहा है पर बिलियन में, किसके,
किसी भी पेशेंट के, तो इसका मतलब उसको अस्थमेटिक हो सकता है या उसको अस्थमा हो सकता है, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, जब हमारी ब्रोंकाई में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। क्या होगा, ब्रोंकाई में, एयरवे में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। तो वहां से नाइट्रस ऑक्साइड का लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो वो आपको कहां देखने को मिलेगा लेवल, जब आप एक्सप्रेशन करोगे तब। ठीक है, पीक फ्लो मीटर की बात करते हैं। ये एक डिवाइस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को फूंक मारने के लिए बोलेंगे। क्या करेंगे, फूंक मारने के लिए बोलेंगे। इसमें 3 मार्किंग होगी, ग्रीन, येलो और रेड। अगर पेशेंट फूंक मारने के बाद ग्रीन पे जो उसका बॉल होगा वो ग्रीन तक जा पा रहा है, इसका मतलब पेशेंट का लंग फंक्शन ठीक है। अगर येलो पे है तो उसको मॉडरेट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। और बात करें रेड की, तो रेड, उसका अगर रेड वॉल जो फूंक मारने के बाद, एक्सप्रेशन करने के बाद उसका जो फ्लोमीटर है वो रेड को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, शी सफरिंग फ्रॉम सीवियर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। Next. अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिक डिजीज कैसे प्रोग्रेस करती है अस्थमा वाली। तो इन्फ्लामेशन एंड एडिमा ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, कोई भी ट्रिगर हमारा ट्रिगर जाने के बाद में क्या होगा, अंदर इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, एडिमा होगी। एडिमा होगी किसकी, म्यूकस मेम्ब्रेन की। जैसे एडिमा होगी तो एडिमा की वजह से वहां पे क्या होगा, इन्फ्लामेशन की वजह से वहां टेनेसियस सीक्रेशन, म्यूकस ग्लैंड के सीक्रेशंस बढ़ जाएंगे। म्यूकस ग्लैंड के सीक्रेशंस बढ़ जाएंगे। जैसे ही म्यूकस ग्लैंड के सीक्रेशन बढ़ेंगे तो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो क्या जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्मास ऑफ स्मूथ मसल्स, और इन्फ्लामेशन की वजह से क्या होगा, वहां पे स्मूथ मसल की क्या होगी, स्पाज्म होगी। और ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियल और ब्रोंकाई की जो स्पाज्म होगा कौन सी मसल्स में, स्मूथ मसल्स में। जैसे ही कोई मसल स्पाज्म करती है, कोई मसल क्या करती है, स्पाज्म कर रही है, स्पाज्म कर रही है, इसका क्या होगा, जो डायमीटर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डायमीटर कम हो जाएगा। स्पाज्म की वजह से क्या होगा, डिक्रीज द कैलिबर ऑफ ब्रोंक्यूल्स। जो ब्रोंक्यूल्स और कैलिबर्स होगा, जो ब्रोंकुलर का क्या होगा, कैलिवर्स होगा, वो क्या होगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा और आकर ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। आपको सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, डिस्निया होगा, कफिंग होगा, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर रहे हैं हम साइन एंड सिम्टम की। Previous. साइन एंड सिम्टम की, साइन एंड सिम्टम में हमको अस्थमा में क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो हम बात करें डिस्निया, पेशेंट को क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी। अच्छा, डिस्निया को हम ऐसे कई कैटेगरी में डिवाइड भी कर सकते हैं। एक स्केल आता है एमएमआरसी डिस्निया स्केल, एमएमआरसी डिस्निया स्केल। उसके साथ में डिस्निया को हम 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 5 सेक्शन में, सॉरी 5 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से, कि स्केलिंग 0, 1, 2, 3, 4। अगर आप बात करते हैं किसी भी पेशेंट को या किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को स्ट्रेसफुल एक्टिविटी या स्ट्रेसफुल एक्सरसाइज करने के बाद में क्या हो रहा है, डिज्निया, तो उसको हम देंगे ग्रेडिंग 0। डिज्निया अगर क्लाइंब कर रहे हैं, हम कहीं पे स्टेयर्स को क्लाइंब कर रहे हैं या कहीं चढ़ रहे, छत पे चढ़ रहे हैं, तो कहीं भी क्लाइंबिंग के टाइम पे डिज्निया हो रहा है, इसका मतलब आपका डिज्निया ग्रेड कौन सा है, 1। दूसरा आता है हमारा, 2 व्यक्ति की बात करते हैं हम, जैसे मैं हूं और मेरी एक एज ग्रुप का दूसरा व्यक्ति है। मैं मेरे एज ग्रुप के व्यक्ति के साथ या मेरे एज ग्रुप के पीपल के साथ चलता हूं, तो उसके टारगेट के साथ चलने पर मुझे बीच में कहीं रेस्ट लेना पड़े या बीच में कहीं रुकना पड़े, इसका मतलब आपको ग्रेड कौन सा है, 2। मतलब मैं उसके समान नहीं चल पा रहा हूं। डिज्निया ग्रेड 3 की बात करते हैं, तो डिज्निया ग्रेड 3 ऐसे होगा कि अगर आपको 100 मीटर चलने पर भी, 100 में कितने डिजिट आते हैं, 3 डिजिट आते हैं, तो हम इसको ऐसे भी रिमेंबर कर सकते हैं कि 3 डिजिट 3 से कोरिलेट कर लेंगे। 100 मीटर चलने पर अगर डिज्निया हो रहा है, इसका मतलब उसका ग्रेड कौन सा है, 3। और अगर फूड खाने में, मतलब खाना खाने में, कपड़े पहनने में, अपनी नॉर्मल सा उठने चलने में क्या हो रहा है, डिज्निया, उसका ग्रेड कौन सा होगा, ग्रेड 4। तो ये क्या है, डिज्निया की ग्रेडिंग है। इसको हम कभी कोई पेशेंट में ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, चलवा के या फिर उसको पूछ के कि आपको इसे चलने पे डिज्निया होता है क्या, या बैठे बैठे सांस लेने में तकलीफ होती है क्या। ब्रीथिंग साउंड ऑन एक्सपिरेशन, अब हम जब पेशेंट को साउंड बोलते हैं कि भाई तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, तो बोलता है कि साहब सीटी सी बजती है, हमें क्या होता है, सीटी बजती है, मतलब ब्रीथिंग साउंड आ रहा है। ब्रीथिंग साउंड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा जो एयरवे है, एयरवे के इन्फ्लामेशन की वजह से वहां पे क्या हो गया, हमारा
जो एयर का जो क्या बोलते हैं एक्सपायरेशन हो गया, जो एयर छोड़नी चाहिए बाहर, वो प्रॉपर हम नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो वहां पे क्या है, म्यूजिकल साउंड एक प्रोड्यूस होगी, इसको बोलेंगे बीजिंग साउंड। कौन सी साउंड? बीजिंग साउंड। अब बीजिंग साउंड और कहां देखने को मिल सकती है? हो सकता है बीजिंग साउंड कहीं और भी देखने को मिल जाए। अगर टीएफ की बात करें हम, टीएफ ट्रिक्यो इसोफेजियल, वहां भी आपको बीजिंग साउंड देखने को मिल सकती है। ब्रोंकियोलाइटिस, लेकिन ब्रोंकियोलाइटिस में बीजिंग साउंड का पैटर्न थोड़ा अलग होगा। बीजिंग साउंड तो देखने को मिलेगी, साथ में आपको फीवर होगा और नोज का इन्फ्लामेशन होगा या इन्फेक्शन होगा, तो आप उसको कोरिलेट कर सकते हो किसके साथ में? ब्रोंकियोलाइटिस के साथ में। लेकिन अस्थमा में जरूरी नहीं है आपको फीवर देखने को मिले, फीवर देखने को मिले। रिकरेंट कफ, बार बार में खांसी आएगी, और नॉक्सुरल कफ, कफ का पैटर्न देखने को मिले। मैक्सिमम कफिंग कहां होगी? हमें हाथ में होगी। पोस्टशिप वॉमिटिंग, कफिंग के बाद में कभी हल्का सा हो सकता है ब्लड आ जाए, तो उसको बोलते हैं पोस्टशिप वॉमिटिंग। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होगा, क्लबिंग ऑफ फिंगर्स होगा, अगर ज्यादा ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का डिलीवरी बॉडी में कम हो गई, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा गिर जाती है अस्थमा की वजह से, तो आपको क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने को मिल सकता है। सीवियर केस में, एडवांस केस में साइनस भी प्रेजेंट हो सकता है। चार्कोप्लेटेड क्रिस्टल, क्रियोला बॉडी, कस्मन स्पाइरल, ये तीनों सिम्टम्स जब हम स्पुटम की माइक्रोस्कोपी करेंगे, वैसे जनरली यूज होने वाले वो नहीं, बहुत एडवांस या फिर बात करते हैं हम रिसर्च के हिसाब से करने वाली चीजें हैं। लेकिन चार्कोप्लेटेड क्रिस्टल जब हम बात करते हैं स्पुटम को हम देखेंगे, स्पुटम को माइक्रोस्कोपी करेंगे, तो उसमें जो हमारी बढ़ी हुई इसिनोफिल्स हैं, इसिनोफिल्स जो ब्रेक डाउन हुई है ड्यू टू द इन्फ्लामेशन, तो वो आपको प्रेजेंट मिलेंगी कहां पर? स्पुटम में। क्रियोला बॉडीज, तो एपिथेलियल सेल हो गई, एपिथेलियल के जस्ट नीचे कौन सी सेल हो जाएगी? सब एपिथेलियल सेल। तो सब एपिथेलियल मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन होने की वजह से इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन होगा तो वहां पर डिस्ट्रक्शन टिश्यू का, सेल का होना ही होना है। तो हम देखेंगे क्रियोला बॉडीज में, तो आपको सब एपिथेलियल सेल्स के क्या देखने को मिलेंगे? म्यूकस प्लग देखने को मिलेंगे। प्रक्सिमल स्पाइरल की बात करें तो उसमें क्या होगा कि एक स्पाइरल शेप की क्या स्ट्रक्चर ऐसे बन जाएगी, कहां पर? स्पुटम में, ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ एपिथेलियल म्यूकस सेल। तो ये हमारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे। अब इसमें एक सिम्टम और हो सकता है, जिसको बोलते हैं इंटरवेल सिम्टम्स, जो कि चाइल्ड के लिए थोड़ा ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इंटरवेल सिम्टम जैसे कोल्ड एंड कफ है पेशेंट को रेगुलरली, लेकिन उसको सिम्टम्स आ रहे हैं कोल्ड और कफ के बीच के इंटरवेल में, उसको बोलते हैं इंटरवेल सिम्टम्स, वो भी देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट। अब बात करें मेडिकल ट्रीटमेंट की। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं, पहले चलते हैं ब्रोंकोडायलेटर में। ब्रोंकोडायलेटर के 3 टाइप होते हैं, बीटा 2, सिंपैथेटिक, न्यूमेटिक। ऐसी ड्रग्स जो बीटा 2 रिसेप्टर को क्या करेंगे? प्रमोट करेंगी, फंक्शन करने के लिए ब्रोंकोडायलेशन करेंगी। दूसरा हो गया आपका मिथाइल जैंथिस। जो बीटा 2 सिंपैथेटिक 2 तरह की होती है बीटा 2 में। बीटा 2 सिंपैथेटिक न्यूमेटिक में 2 तरह की ड्रग्स होंगी, शॉर्ट एक्टिंग एंड लॉन्ग एक्टिंग। साल्बुटामॉल की बात करें हम तो शॉर्ट एक्टिंग जल्दी काम करता है, कम समय के लिए काम करता है। और बात करते हैं लॉन्ग एक्टिंग की, तो साल्मेट्रॉल हो गया हमारा। दूसरा, ये ड्रग्स क्या करेंगे? हमारे ब्रोंको को ब्रोंकोस का क्या करेंगी? डायलेशन करेंगी। दूसरा मिथाइल जैंथिन, थियोफाइलिन, डॉक्सीफाइलिन, इटोफाइलिन, जितनी भी फाइलिन है किसमें आ जाएंगी? हमारी मिथाइल जैंथिन में आ जाएंगी। तीसरा एंटीकोलिनर्जिक। अब 2 तरह की एक्टिविटी, कोलिनर्जिक एक्टिविटी और एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी। एंटीकोलिनर्जिक एक्टिविटी क्या करती है हमारी? जो हमारे कोलिनर्जिक, जैसे कि बात करते हैं एसिटाइलकोलिन के लेवल को कम करती हैं, और आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, उसकी एक्टिविटी को क्या करेंगी? कम करेंगी और प्रमोट करेंगी किसके? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को प्रमोट करेंगी, जैसे कि ब्रोंकोडायलेशन, वैसोडायलेशन, बीपी बढ़ाएंगी, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ाएंगी, पल्स बढ़ाएंगी, है ना। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्यों देंगे हम? क्योंकि वहां पर हमको सिंपैथेटिक एक्टिवेशन क्या करना है? कम करना है। तो उसमें कौन सी ड्रग आ जाएगी हमारी? जिसको हम बोलते हैं टायोप्रोटोनियम ब्रोमाइड। ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया ब्रोंकोडायलेटर का। दूसरा था ल्यूकोट्राइन्स इनहिबिटर्स। ऐसी ड्रग्स जो हमने प्रीवियस में बात किया था कि हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर होते हैं मास्ट सेल से जो निकलते हैं, ल्यूकोट्राइन, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो उनके लेवल को कम करने वाले ड्रग्स। ऐसी ड्रग जो कि ल्यूकोट्राइन्स का सिक्रेशन हो गया लेकिन उसका लेवल क्या करेगी? कम करेगी। उसमें आ गया मोन्टेलुकास्ट, जो हम मोन्टेगेल्सी बोलते हैं इसको,
उसके उसका क्लासिफिकेशन है। कोर्टिकोस्टेरॉइड, स्टेरॉइड की बात करते हैं। स्टेरॉइड दो तरह के देते हैं, सिस्टेमिक और इनहेलेशन। सिस्टेमिक हो गया प्रेडनिसोलोन, बाइसोलोन जो हम ओरली देते हैं, हाइड्रोकोट हो गया हमारा जो आईवी रूट से देते हैं। दूसरा हो गया हमारा इनहेलेशन में बुडोकोट हो गया, तो ये किसमें देंगे हम, बाय द नेप। तीसरा हो गया, चौथा हो गया मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अब मास्ट सेल क्या करती है, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर प्रोड्यूस करती है, तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए हम ड्रग्स देते हैं, उसको बोलते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। इसमें आ गया हमारा सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। एंटीबायोटिक्स, प्रीवियस में हमने देखा पेशेंट का क्या बड़े हुए थे, काउंट बड़े हुए, एंटीबायोटिक दिया तो उसका क्या हुआ, काउंट कम हुए, सेकेंडरी को इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट का क्या रिलेशन है अस्थमा या सीओपीडी पेशेंट के साथ में, तो जैसे ही हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होता है, जैसे ही हमारी बॉडी में हाइपोक्सिया होगा, हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स में जो जेजी अपार्टस होता है हमारे रीनल का, रीनल सिस्टम में जो ग्लोबुलस होता है उसका जेजी अपार्टस होता है, जेजी सेल्स, वहां से हाइपोक्सिया के रेस्पॉन्स में क्या रिलीज होता है, इरिथ्रोपोइटिन। इरिथ्रोपोइटिन रिलीज होगा तो आरबीसी ज्यादा बनेगी, हीमोग्लोबिन ज्यादा होगा तो इंक्रीज द चांस ऑफ क्लोट, उससे प्रिवेंट करने के लिए हम एंटीकोगुलेंट वहां पे देंगे। एंटासिड देंगे, क्योंकि एंटासिड इसलिए देंगे कि एसिडिटी कम होनी चाहिए, क्योंकि जीआरडी इज द आल्सो रिस्पेक्ट ऑफ अस्थमा। जीआरडी होगा तो बैकफ्लो आएगा, बैकफ्लो आएगा तो आपका ट्रेकियल या फिर रेस्पिरेटरी जो म्यूकोसा है वो क्या इरिटेट होगी और अस्थमा कोज कर सकता है। इंस्टेंट में स्पायरोमेट्री, और उसको क्या करना होता है, स्पायरोमेट्री करना है। नर्सिंग मैनेजमेंट की बात करें तो हम पेशेंट के साथ में कौन कौन नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं। असेस द जनरल कंडीशन, पेशेंट की सबसे पहले जनरल कंडीशन को असेस करना है। एंड वाइटल ऑफ पेशेंट इन इंस्टीट्यूट, पेशेंट के वाइटल्स देखने हैं, एसपीओ2, पल्स रेट और उसका जो भी बेसलाइन डाटा सारा एवरी शिफ्ट में हमको चेक करना होता है। प्रोवाइड प्रोडक्ट पोजीशन, प्रोडक्ट मतलब ऐसी पोजीशन जहां पे पेशेंट ऐसा बैठा हुआ है सीधा पीछे बैक रेस्ट लगा के। इससे फायदा क्या होगा कि हमारे लंग्स को एक्सपेंड करने के लिए प्रॉपर स्पेस मिलेगा और पेशेंट इजीली ब्रीथ कर पाएगा। एनकरेज टू पेशेंट डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज एंड इंसेंटिव स्पायरोमेट्री, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है और इंसेंटिव स्पायरोमेट्री करनी है। पेशेंट को टीच करना है कि इंसेंटिव स्पायरोमेट्री कैसे करनी है। तो पहले सांस छोड़ना है, फिर आराम से डीप ब्रीथ लेके फिर फूंक मारना है। पेशेंट को हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, प्रोवाइड ऑक्सीजन सपोर्ट टू पेशेंट एज पर रिक्वायरमेंट। अगर पेशेंट को कोई भी रिक्वायरमेंट है किसकी, ऑक्सीजन की, तो उसको हम उस हिसाब से ऑक्सीजन देंगे। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, पेशेंट को प्रोवाइड करना है, इमोशनली उसको मजबूत बनाना है। टेल द पेशेंट अबाउट द इरिटेंट्स एंड एलर्जन, सारे जो रिस्क फैक्टर हैं जैसे हाउस माइट्स, पोलन, जिससे आप बच सकते हो उसके बारे में आप उसको इंस्ट्रक्ट करोगे। कोल्ड हो गया, कोल्ड एक्सपोजर हो गया, स्मोकिंग हो गई, सबसे आपको बचने के लिए उसको इंस्ट्रक्ट करना है पेशेंट को, या उसको इंस्ट्रक्शन ऐसे देने हैं। मेंटेन द इनपुट आउटपुट, पेशेंट को हाइड्रेशन मेंटेन होना बहुत जरूरी है, इसलिए इनपुट आउटपुट हम चेक करेंगे। टीच द पेशेंट हाउ टू यूज इनहेलर, अब आप पेशेंट को बताएंगे कि इनहेलर अगर कोई पेशेंट ले रहा है तो उसको कैसे यूज करना है। इनहेलर यूज करना है तो कैसे यूज करना है, तो सबसे पहले कोई भी इनहेलर है तो उसको लेना है, उसका लॉक खोलना है। लॉक खोलने के बाद में मेडिसिन को कम से कम 5 से 7 सेकंड तक आप क्या करोगे, पहले सेक करोगे। सेक करने के बाद में आपको पहले ब्रीथ ऐसे ब्रीथ एक्सेल करना है, पूरा ब्रीथ एक्सेल करोगे। फिर आप कंटेनर लोगे, कंटेनर का जो मुंह में जो होता है कनेक्टर, वो मुंह में लेने के बाद में आपका कहीं से लीकिंग नहीं होना चाहिए। कहीं से लीकिंग नहीं होने के बाद में आपकी जो उसको प्रेसिंग की, प्रेस करने की और इनहेल करने की जो टाइमिंग है वो एकदम सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने प्रेस कर दिया, इनहेल 2 मिनट बाद कर रहे हो, तो वो ऐसा नहीं है। तो आपको डीप इनहेल करना है। इनहेल करने के बाद में, इनहेल करने के बाद 5 से 10 सेकंड तक क्या करना है, आपको श्वास को रोकना है, उसके बाद एक्सेल करना है और उसके बाद में हमको पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आपको जितनी भी टाइम दिन में 2 बार ले रहे हो, 3 बार ले रहे हो, आप इनहेलर ले रहे हो या आप कोई भी फोराकोट या कुछ ले रहे हो, तो आपको क्या करना है, कुल्ला करना है। पानी से क्या करना है, गार्गल्स करना है, कुल्ला करना है। क्यों, क्योंकि वो थर्ड कंटेनर होता है, तो हो सकता है कि आपके जीभ पे वो फंगल इन्फेक्शन कैंडिडेट वगैरह कर दे। दूसरा बात, पेशेंट को इनहेलर लेने के पहले और बाद में एक एक सिप वाटर देना होता है। उसका लॉजिक ये होता है वाटर देने का कि जो हमारे इनहेलर एजेंट्स होते हैं उनका टेस्ट क्या था, बिटर होता है। तो उस बिटर टेस्ट से बचने के लिए, टेस्ट बिटर ना है उससे बचने के लिए क्या करते हैं हम, इनहेलेंट पानी एक घूंट पहले और एक घूंट बाद में देंगे।
इसके बाद बात करते हैं अगर कोई पेशेंट 2 ड्रग्स पे चल रहा है जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर और स्टेरॉइड्स, तो हम पहले पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि आपको पहले ब्रोंकोडायलेटर का देन स्टेरॉइड लेना है। रीजन क्या है, अगर ब्रोंकोडायलेटर हम पहले लेंगे तो स्टेरॉइड का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया होगा। दूसरी बात, एक यहाँ पे ये चीज होती है कि अगर पेशेंट सेम ड्रग्स ले रहा है, अगर मान लो किसी भी पेशेंट को मान लो एमडीए इनहेलर चल रहा है, सेम ड्रग है, डोज लेने 2, तो अगर सेम ड्रग है तो 2 डोज के बीच में कम से कम 2 मिनट का गैप होना चाहिए। अगर डिफरेंट ड्रग है और 2 डोज है तो कम से कम कितना गैप होना चाहिए, 5 मिनट का गैप होना चाहिए। इसके आगे फिर एक आता है स्पेसर। स्पेसर जैसे कि ये स्पेसर हुआ हमारा, तो स्पेसर में यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पर हम हमारा इनहेलर को क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद में इससे यहां से हम क्या लेंगे, एकदम डीप ब्रीथ लेंगे और एक्सेल करेंगे अच्छे से। अब इसका फायदा यह, इसको क्यों यूज करना पड़ा हमें, उसकी जगह पर क्या बोलते हैं, इनहेलर की जगह पर हमको इसको यूज क्यों करना पड़ा, उसका इसका रीजन ये होता है कि एक तो प्रेशर जो होता है जो मेडिसिन को ब्रेक डाउन करता है मैनी पार्टिकल्स में, मैनी एरोसोल्स में, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाती है। दूसरा, जिसकी ब्रीदिंग इफिशियंसी कम होती है तो ये चेंबर क्या करता है, मेडिसिन वेस्ट नहीं होने देता, तो इसके लिए हम इस प्रेशर को यूज करते हैं। हो गया। Thank you, Guldeep. It was a wonderful presentation, briefly explained, and I think sound was very clear. Thank you, Jyoti. And sir, actually, his presentation was superb. Our expert, we'd like you to incorporate your expertise in this subject, in this topic, sir. We would like to add, if you have any key points from your side or any productive, any additional points you want to add in this, it has said you're welcome. Thank you so much for having me here. And Mr. Kuldeep has made a very detailed presentation. He has touched upon all the important aspects of asthma. It is a big topic in 50-55 minutes. He has touched upon all the important components, especially the part in which he was teaching about how the inhalers are used. So that is very important, especially when we have patients admitted and when we are discharging them after prescribing them the medicines. Overall, I think all important aspects were touched upon. If there are any questions, please ask. Yes, sir. Thank you. We'll move on to the open house discussion. You feel free to ask any question. We'll move on to the chat box to see if there are questions available or not. There is one question. Please highlight side effects of anti-asthmatic drugs. So can you answer or let our presenter do it? He can attempt. Later on, I'll do that. अच्छा, एंटी एस्थेटिक ड्रग्स होती हैं तो उसके कई साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं स्टेरॉइड्स के। स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट हो गया हमारा ओबेसिटी हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हो गया, और हमारा जैसे कि बात करते हैं ओबेसिटी डायबिटीज मेलाइटस इम्यूनोसप्रेशन का काम भी करती है स्टेरॉइड। जो पेशेंट स्टेरॉइड ले रहा है तो उसको बोलना है कि, और वेट गेन भी करती है, ओबेसिटी करती है, पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि हमें आपको वेट चेक करते रहना है, आपका ग्लूकोज लेवल मॉनिटरिंग करना है। तो ये हमारे स्टेरॉइड्स के हो गए। अब इनहेल्ड स्टेरॉइड हम इसलिए लेते हैं क्योंकि सिस्टमेटिक स्टेरॉइड से इनहेल्ड स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट थोड़े कम होते हैं। ठीक है, बात करते हैं हम बीटा जैसे कि ब्रोंकोडायलेटर्स की। जो ब्रोंकोडायलेटर्स हम लेंगे तो ब्रोंकोडायलेटर्स लेते हैं तो हमारा हो सकता है कि हमें वहां पर ट्रिमर देखने को मिले, हो सकता है को मिले, सकता है ब्रोंकोडायलेटर से आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाए। रीजन क्या, ब्रोंकोडायलेशन होगा तो वेसोडायलेशन होगा, वेसोडायलेशन से हमारा ब्लड प्रेशर हो सकता है, सिम्टम्स भी असेस करने हैं। बात करते हैं हम ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स की। तो ल्यूकोट्राइन इनहिबिटर्स जैसे कि ल्यूकास्ट वगैरह है, ल्यूकास्ट की हमारा हाईलाइट एक्टिविटी को अवॉइड करना है अगर ले रहे हैं तो, इसलिए हम इसको एचएस लेते हैं। रीजन ये होता है कि मोटेलकास्ट प्रोड्यूस स्लीप प्रोड्यूस करती है, तो इसलिए हमको एक्टिविटी से अवॉइड करना है। जैसे मोटेलकास्ट खा के गाड़ी नहीं चलाना, क्लाइंबिंग वाला काम नहीं करना, कहीं टंकी उटकी वाला कोई कारपेंटर वगैरह ऊपर काम करता है तो उसको ये बोला जाता है कि या तो आप दिन में नहीं खाना है, रात में खाना है, इसलिए हम एचएस लेते हैं मोटेलकास्ट को। आगे हमारा बचा है मास्टर स्टेबलाइजर हो गया, स्टेरॉइड हो गया, और कौन कौन सा मेडिसिन है,
एंटी एलर्जिक, हाँ। सर तो इसमें व्हाट आई लाइक टू ऐड इज कि जो सबसे कॉमनली हम लोग ये इनहेलर्स प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, तो उसके बाद उनको क्या होता है कि कई बार वो ओरल हाइजीन का ध्यान नहीं रखते, तो व्हाट दैट लीड्स इज टू कि ओरल थ्रश काफी कॉमनली उनमें पाया जाता है। तो उसमें हमेशा हम लोग भी इंस्ट्रक्ट करते हैं और ऐसे उनको भी मतलब बताना होता है कि जब भी आप स्टेरॉइड्स या जो भी आप इनहेलर मेडिकेशन ले रहे हैं, तो उसके बाद आप ओरल हाइजीन का ध्यान रखें, अच्छे से गार्गलिंग करके, और उसके बाद वाटर को स्पिट आउट करना है हर बार डोज लेने के बाद। तो जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे कॉमनली हम लोग देखते हैं वो यही होता है कि जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो आकर के आपको ये बताएंगे कि कड़वा सा स्वाद रह रहा है मुंह में, या अगर कुछ फंगल कॉलोनाइजेशन मतलब ओरल थ्रश हो गया है, तो उसमें उस समय तो उसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना होगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए उनको ये बताना है कि आपको ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है ड्रग लेने के बाद। Okay, sir. Thank you. Ma'am, could you please show chat box questions? Next. Next question is, can Montelukast regular use in cold cough increase risk of autoimmune disorders? नहीं, तो ऐसा कोई अभी स्पेसिफिक डेटा तो आया नहीं है, बट हाँ मोंटेलुकास्ट को लेकर के आजकल न्यूरोसाइकेट्रिक प्रॉब्लम्स का इशू हाईलाइट किया गया है काफी सारे रिसर्च आर्टिकल्स में। तो उसको लेकर के एक उसमें प्रॉब्लम देखा जा रहा है कि लॉन्ग टर्म उसको यूज करें या ना करें। तो ये अगेन इट डिपेंड्स कि पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसको कितने लंबे समय तक मोंटेलुकास्ट देना भी है या नहीं देना है, या सिर्फ ओरल जो हम ये इनहेलेशन मेडिकेशन दे रहे हैं उसी से उसका एजमा कंट्रोल हो रहा है। तो ये कंप्लीटली क्लिनिकल डिसीजन है। Okay, sir. Thank you for adding that point. I think it's clear now. We'll move on to the next question. If there is any chat box, no questions. Okay. Anyone wants to ask anything? Please feel free to ask anything. This is judgment-free space, and we have a wonderful expert here. This is a nice opportunity to ask. Make this session more interactive, please. Yes, Ranjana sister, you want to ask anything? Yes, I want to ask if any dietary habits patients should follow. Yes, so it depends on a number of things. Like first is that is there any comorbidity, associated comorbidity for the patient, like if he or she is diabetic or food allergy. Food allergy is also important. So it all depends. First, we have to formulate a healthy diet plan for the patient. If we see that there is, the patient is not very, he has issues with his diet, there is loss of weight, or because of the asthma associated problems have cropped up, like there is depression, the patient is not very physically active. So in that case, we have to see and accordingly advise the patient to take a healthy diet full of fruits, green vegetables. But at the same time, we have to keep in mind that there could be associated food allergy. So we have to dig into the history and see if there is any allergy, then we have to advise not to take that food. Otherwise, a regular healthy diet can be advised. There is no specific as such item which should be advised to the patient to avoid. Thank you, sir. Hope, Ranjana sister, it was quite clear. Yes, thank you, Seema. Thank you, Kuldeep. Okay. Thank you, ma'am. Now, any more questions? One more question is there. Ayush role in asthma? That is an excellent question. Yes, definitely. New data says that it is useful, but again, it depends what stage the patient is. I mean, what is at the time of diagnosis, and again, we'll have to have some expert from the Ayush wing to answer that question in detail. कृपया दरवाजों से हटकर खड़े हों। We'll try to add Ayush also next time. Next, any more questions? You can take a moment and think. Any questions come to your mind, please ask. This is a wonderful platform to ask anything. You could. This is judgment-free space, so please don't take it anything to your mind.
Allergic test. One more question. Allergic test role. Yes, allergic test as it is being done at NITRD also, and as Mr. Kuldeep also presented that IgE level is also tested. So it depends on what kind of asthma we are diagnosing. Like if the IgE level is raised, and we see and we advise a skin prick test, which is happening at NITRD also, and then there we see that the skin prick test has come positive to a particular allergen. So in that case, it becomes very important to advise the patient to avoid that particular allergen, and that will help in his asthma control in addition to his regular medications. Okay, thank you, sir. Any more? Feel free, please feel free to raise your hands if you don't want to write in the chat box. Raise your hand and we'll unmute you. Any more questions? I know Zoom meetings can be silent one, but please make this session more dynamic. If you put up your questions, this session will become more interactive. More questions. Desensitization or treatment any? This is treatment, no? RXC. Treatment? What is this? Desensitization or Desensitization. Who is this? Sebi Das to everyone. Can you understand or Language learning. Dr. Kanishk, are you able to understand this question? Language. Desensitization medicine, I think, is being asked. As such, there is no desensitization medicine. But as we just discussed earlier, if there is any allergen which has been isolated and has been found to be the reason for allergic reaction, then the patient can be advised to avoid it, and we can have allergen immunotherapy also to suppress the reaction coming out of regular exposure to that particular allergen. But as such, desensitization medicine per se is not available. There is allergen immunotherapy. Okay, sir. Thank you. Hope Ms. Sebi Das understood that question. All others too. Any more questions? I think from next time we have to offer small incentives, like tangible rewards to ask you more questions. Okay, so I think there is no more questions. Presentation was superb. He's wonderfully presented it. That's why questions are this time coming less. Thank you, ma'am. Ma'am? Hello. Good afternoon. Sebidas. Nice presentation. Actually, not able to type so quickly. Is there any immunotreatment practiced in India, or any research in this regard? Evidence-based practice any? Commonly we are seeing. Yes, sir. Yes, evidence-based practice in India. Like immunotherapy, you have told us, sir. Yes. So we are not seeing commonly that they are testing for this in which they are more sensitive or hypersensitive. That allergic test we are not seeing commonly. No, it is not commonly available. But like at our center, we do it. We do a skin prick test here, and that is being done since I think 2010 or 12 onwards. So, but at higher centers only it is being done. Like there is one in VPCI, Vallabhbhai Patel Chest Institute. So that is completely evidence based, and there are good results after our skin prick test. We constitute this thing allergen immunotherapy, and it gives very good result. Ms. Sebidas, if you are from Delhi, you can easily come here. You can easily come to our institute. Sorry. I think if you are living nearby, you are from Delhi, you can come to our institute and see our this allergy clinic here. It's superb.
No, ma'am, I am in Uttar Pradesh, but please share your address so that if any opportunity comes, I will come. Okay, great. Okay. Any more questions? So what is the cure rate of this if that is practiced immunotherapy? Is it documented? It is completely documented. It is scientific. Allergen immunotherapy is completely science-based and it is all data-driven. How much cure rate, sir? I beg your pardon? Cure rate. How much cure rate? Whether it is curing the if specific allergic is It all identified. depends. It all depends whether you have any positivity to any of the allergens. So, like your house dust mite, pollens. So these are the common ones in which we have positive skin prick test, and then we administer the immunotherapy, and it shows very good result. But that is, as in addition to what the regular medicines we are giving. Thank you, sir. Thank you. Thank you Okay. for the discussion. Now I think you are clear. Any more questions from you? Or from anyone else here? Okay, if there's no more question, we'll stop this session here. I think we'll leave here. Any more questions? No more questions in chat box. So I think we have covered most of the points and that we wanted to cover here. Rest, thank you for everyone for joining this session. Hope we'll miss next month, 3rd Friday, with a new topic related to this TB or either the chest infection. I hope this time you had clear instructions how to join the session and the video link was clear. I think most of you joined easily without any problem. Okay, now for the feedback, kindly use the chat box. You can put your questions in feedback. Please give your feedback so that we will be able to know how about the presentation and we can improve next time. Okay, so we are leaving it open for another 5 minutes so that you can put your feedback. Have a great day ahead. See you next month. Thank you, sir. Thank you, Dr. Kanishk, for being an expert and spending your time with us. My pleasure. My pleasure. Okay, sir. Thank you so much. So we'll keep the session running for another 2 minutes. Till then, request you all to share the feedback. The link is in the chat box.